Hello student, today we are going to learn next our first problem is an unsolved problem, solved problem from your textbook page number 214. See, this one is problem is related to dissolution of firm. Riddhi and Siddhi are partners sharing profit or losses in the ratio 2:1. Sharing profit or losses means here profit sharing ratio of Riddhi and Siddhi's were 2:1. The following is their balance sheet as on 31st March. They given their balance sheet. Always remember, when we dissolve that one firm, that time we require old balance sheet to prepare realization account, partners capital account. Okay, in that problem we are not going to prepare balance sheet. We are not going to prepare balance sheet because that one firm is already dissolved. Okay, after dissolution there is no any assets and no any liability, that's why we are not going to prepare balance sheet. Understood everybody? Then see, here they given balance sheet. See, this one is a balance sheet, this one is a balance sheet. Balance sheet liability side, see all balances are given. Capital, Riddhi capital 80,000, Siddhi capital 60,000, reserve fund 16,000, Siddhi's loan account 4,000 and creditors 30,000. Okay, that all those balances means Riddhi Siddhi capital that can be transferred to partners capital account credit side, where we transfer that can be posted to partners capital account credit side. The next one balance is what? Reserve fund. See, here is what? Reserve fund. Always remember, reserve fund is a part of accumulated profit, that's why we distribute it to all partners in their old ratio. That is reserve fund or general reserve that can be distributed to partner in their ratio 2:1. General reserve amount is what? 16,000, and that 16,000 we distributed in the ratio 2:1. Okay, the next one they given Siddhi's loan account. Here for that particulars we are going to prepare separate account to maintain that particulars your partners loan account. After that, the given creditors we see first one which one asset is released or which one liability is revalued, then we do like that one. Okay, the next one building is a 60,000, furniture 24,000, machinery 20,000, debtors inner column 17,600, less RDD 1,600 and outer balance is what? 16,000. The next one is the stock 40,000, investment 8,000, interest receivable 2,000, bank 20,000. Okay, see here balance sheet total is a 1,90,000. Balance sheet total is what? 1,90,000 is a old balance sheet. Using that one balance sheet we dissolve the firm. Okay, understood everybody? आज तक जितने भी प्रॉब्लम हमने देखे थे एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में हमने क्या किया था, तो वहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे. बट इन दैट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू प्रिपेयर realization account, partners capital account and bank account. No need to prepare balance sheet. Why? The reason is here, when any firm is dissolved, then there is no any asset or liability in the firm, that's why there is no any balance sheet. Everybody know balance sheet is a statement that shows assets and liabilities balances. अभी यहाँ पे क्या हो रही है? फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी एसेट्स एंड लायबिलिटी. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, देन आई विल रीड फर्स्ट एडजस्टमेंट. सी, ऑन द 31st March 2019 दैट फर्म वाज डिसॉल्व. डिसॉल्व मतलब क्या है यहाँ पे? दैट फर्म वाज वाइंड अप, दैट फर्म वाज वाइंड अप और क्लोज. दैट फर्म वाज वाइंड अप और क्लोज. सी, here they given first adjustment assets release as follow. First, machinery rupees 22,000, building 28,000, stock
38,000, debtors 15,000. द फर्स्ट एडजस्टमेंट मीन्स रिलीज करना मतलब यहाँ पे आपको समझ के लेना है. रिलीज करना मतलब यहाँ पे हम जितने भी एसेट हैं हमारे यहाँ पे जो लिखे हैं मेंशन किए मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स दैट कैन बी सोल्ड. सेलिंग करने वाले उसकी क्या करने वाले, सेलिंग करने वाले, ये सोल्ड करने वाले. सो दैट्स वाई ये याद रहेगा. अभी एसेट रिलीज करना मतलब क्या है, सेलिंग करना एसेट की, क्योंकि एसेट सेल करने के बाद उनके पास जो भी मनी वर्थ होगा उस मनी वर्थ से वो पे करेंगे लायबिलिटी. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. द नेक्स्ट वन, सेकेंड एडजस्टमेंट. रिद्धि टूक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10,000 and furniture at book value. Here they give a next adjustment. The next adjustment, partner taken over assets, investment at 10,000 and furniture as book value. Everybody know what exactly we do that type of adjustment, because same adjustment we already completed in a admission, retirement and death. So same effect is here. If any partner take an asset, then we recorded partner's capital account debit side. But always remember here all assets and liabilities already releases मतलब हमने सेलिंग के लिए रखे. दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट या फर्नीचर नाम नहीं आएगा. तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट. आई शो यू हाउ टू रिकॉर्ड दैट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट. बट जो भी मैं बता रही हूँ कंसेप्ट ठीक से सुन लो. ठीक है. देन थर्ड एडजस्टमेंट, सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट ₹3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट. एक्चुअली सिद्धि ने फर्म को लोन दिया था. सिद्धि ने फर्म को क्या दिया था, लोन दिया था. एंड दैट लोन उसने एक्सेप्ट क्या किया ही, शी इज एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹3,000. बट एक्चुअली उन्होंने लोन कितने रुपीज़ का दिया था, 4,000 रुपीज़ का दिया था. बट उन्होंने सेटलमेंट किए एंड शी हैव एक्सेप्टेड ₹3,000. सो यहाँ पे सिर्फ 3,000 की पोस्टिंग करेंगे. उसके लिए सेपरेटली अकाउंट क्रिएट करेंगे और मैं वहाँ पे बताऊँगी आपको कैसे करना है, क्योंकि 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है. तो what exactly we do, that we exactly learn in our account. Next, dissolution expenses amounted ₹4,000. हमेशा याद रखो जब कोई भी कंपनी डिजॉल्व होती तो वहाँ पे एज पर लीगली वहाँ पे लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है. तो लिक्विडेटर वो सम एक्सपेंसेस लेता है टू डिजॉल्व दैट फर्म. जैसे कि आप नोटरी करने जाते तो नोटरी के लिए आपको चार्जेस लगते हैं, राइट? एम आई राइट? यस, नोटरी करने के लिए जाते तो वहाँ पे चार्जेस लगते हैं. या कोई भी आप लीगली डॉक्यूमेंट बनाना चाहते तो वहाँ पे चार्जेस पे करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं. वैसे ही यहाँ पे फर्म डिजॉल्व करने के लिए रजिस्ट्रार क्या लेता है, रजिस्ट्रार मीन्स एवरीबडी नो, वहाँ पे वो एज पर एक्ट यहाँ पे क्या लिया जाता है, सम एक्सपेंसेस लिए जाते हैं या कुछ अमाउंट ली जाती है. दैट अमाउंट इज नोन एज अ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या उसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कहा जाता है. ओके, सबको याद रहेगा. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर्म डिसॉल्व करने के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं तो उसे कहा जाता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. अनदर नेम ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस व्हाट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो उसकी पोस्टिंग करनी होगी. ये एक्सपेंसेस है हमारे लिए, तो एक्सपेंसेस की पोस्टिंग कैसे करेंगे वो भी देखते हैं. देन नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड. क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड. रिसीवेबल मतलब सबको पता है यहाँ पे इनकम है एंड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड. रिकवर्ड ही नहीं मतलब अब तक वो क्या है, रिसीवेबल ही है. तो इन दैट केस मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग है. क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग है. सबको याद रहेगा ये इनकम आउटस्टैंडिंग है. बाद में बताया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धिस लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. तो हम यहाँ पे ऐसे प्रिपेयर करेंगे. बट इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन इट मे बी द आस्किंग टू प्रिपेयर लेजर और जर्नल एंट्रीज. एक तो जर्नल एंट्री पूछेंगे, अदरवाइज ये जो भी लेजर दिए हैं वो पूछेंगे. तो आपको फोकस करना है. When I'll explain that whole problem, after that you have to solve journal entry in your notebook. Okay.
ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद आपको कंपलसरी आपके नोटबुक में जर्नल एंट्री पास करनी है, क्योंकि लेजर आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, दैट्स वाई नोटबुक में आपके जर्नल एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं फिर। फर्स्ट वन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ सिद्धि रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिलीज होते हैं, दैट अकाउंट इज नोन एज अ रियलाइजेशन अकाउंट। सी फर्स्ट, ये प्रॉब्लम करते समय हमें फर्स्ट स्टेप्स याद रखना है। व्हाट इज द स्टेप्स? तो स्टेप्स अभी मैं बता रही हूँ, हर प्रॉब्लम के लिए यही स्टेप्स होंगे। फर्स्ट वन, जितने भी एसेट है कैश और बैंक बैलेंस छोड़ के, कैश और बैंक बैलेंस छोड़ के जितने भी एसेट है उसे ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट स्टेप्स नोट डाउन करके रखो, नोट डाउन करके रखो। क्या नोट डाउन करना है आपको? कि ओल्ड बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स है, जितने भी एसेट है एक्सक्लूड बैंक और कैश बैलेंस, ये छोड़ के सारे बैलेंस, सारे एसेट हमें ट्रांसफ़र करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। ये फर्स्ट स्टेप है। अंडरस्टूड एवरीबडी? क्या है फर्स्ट स्टेप? ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड इज अ फर्स्ट स्टेप्स। अभी सेकेंड स्टेप्स क्या है? उसके बाद सेकेंड स्टेप से जो भी करंट लायबिलिटीज है दैट कैन बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, दैट कैन बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब याद रखना, जो ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी के बैलेंसेस दिए हैं वो एज इट इज वहाँ पे लिखने हैं। अंडरस्टूड एवरीबडी? कंफर्म? फर्स्ट स्टेप all asset transfer to realization account. Second steps are liabilities transfer to realization account credit side. उसके बाद रिमेनिंग क्या है? कैपिटल, ये कैपिटल साइड जाएगा। जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड दिया है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का जो भी बैलेंस होगा दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। ओके, P&L अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स। अंडरस्टूड एवरीबडी? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप सबको समझ में आया है? तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एंड स्टेप फॉलो किए हैं या नहीं। देखो यहाँ पे जो ओल्ड बैलेंस शीट थी वहाँ पे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सारे बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफर किए। दिखे सबको ये वाला? ओके, याद है लिखा है, क्या लिखा है? टू सन्ड्री एसेट। क्या लिखा है? सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब क्या है? ऑल एसेट विच वन इज इंक्लूडेड इन योर ओल्ड बैलेंस शीट। अंडरस्टूड? तो ये सब गए, लेकिन यहाँ पे और एक बात याद रखो, जो डेटर्स है, डेटर्स की अमाउंट कौन सी होगी? जो इनर कॉलम में दी है, जो ओल्ड बैलेंस शीट में इनर कॉलम में अमाउंट दी है वही कंसिडर करनी हमें यहाँ पे। अंडरस्टूड? ओके, डेटर्स की अमाउंट कौन सी लिखी है? जो इनर कॉलम में लिखी है वो। फिर हमें ओल्ड जो भी आरडीडी उसका क्या करना है? उसे ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा है मैंने। अंडरस्टूड एवरीबडी? सबको यह याद रहना चाहिए कि डेटर्स की इनर के अमाउंट हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, और जो भी आरडीडी होगा उस वो कहाँ पे जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड? ओके, फर्स्ट स्टेप फॉलो हियर। व्हाट? all asset balances transferred to realization account debit side. That's it. Second step is what? Whatever liabilities in our old balance sheet that can be transferred to realization account credit side. तो यहाँ पे एक ही बैलेंस था। सिद्धिस लोन अकाउंट के लिए हम सेपरेटली अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें कहा गया, दैट्स वाई एक ही लायबिलिटी बाकी है, दैट इज व्हाट? डेट क्रेडिटर्स, and that can be transferred to realization account credit side. Understood everybody? Okay, first step we are following here, all asset transfer to realization account debit side and are whatever liabilities that can be transferred to realization account credit side. After that means after completion of posting, बैंक अकाउंट कहाँ पे? बैंक अकाउंट का जो भी बैलेंस है दैट कैन बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड। सिद्धि लोन अकाउंट है, सिद्धि लोन का जो भी बैलेंस है दैट कैन बी ट्रांसफर टू सिद्धिज लोन अकाउंट क्रेडिट साइड। कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड। हमेशा याद रखना जब पोस्टिंग करते हो
किसी भी अकाउंट की पोस्टिंग जो बैलेंस है वो पोस्टिंग करते, तो अगर वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट कैसे, एसेट में तो डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी में तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने पोस्टिंग के बारे में सब कुछ बता दिया है कैसे करना है। अब तक फिलहाल वी आर फॉलोइंग ओनली 2 स्टेप्स, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड liabilities transfer to realization account credit side. Then I'll read first adjustment. First adjustment is what? All assets release as follow. जो भी एसेट है वो रिलीज हो गए। मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000, डेटर्स 15,000, मतलब हमने उसकी सेलिंग की है। जो भी एसेट है बुक वैल्यू को थे उन सबकी क्या की, सेलिंग की। जब एसेट सोल्ड हो जाते तो उसकी पोस्टिंग होती है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक। बिल्डिंग 28,000, debtors 15,000, stock 38,000, machinery 22,000 and outer column I'll write balance by bank 1,03,000, by bank 1,03,000। अभी मैंने यहाँ पे स्टेप्स सारे बैलेंसेस लिखे हैं, क्या क्या हमने सोल्ड, कितने अमाउंट को किया, ये सब मैंने वहाँ पे मेंशन किया। बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक एंड मशीनरी। एंड आउटर में लिखा हमने क्या, 1,03,000। ये हो गया फर्स्ट। आज तक जो भी हम एडजस्टमेंट देखते आ रहे तो हमने देखा था ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट्स, सो सेम एज इट इज हियर 2 इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट वी recorded here, realization account credit side. When all asset is released, then that first effect we recorded realization account credit side, and second effect we recorded bank account debit side. Where we recorded bank account debit side. See here, this is second effect, first adjustment, second effect, to realization account 1,03,000. Understood? Okay, first effect understood. This one is second effect, first adjustment, first effect, and second effect recorded bank account debit side. Confirm? The next adjustment, Siddhi took over investment at 10,000 and furniture at book value. हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पे सिद्धि ने वो एसेट लिए है बट दैट एसेट ऑलरेडी रिलीज हो चुके। रिलीज होने के बाद मतलब उनको मैंने करंट एसेट में लिक्विडेशन करने के लिए क्या है, कन्वर्ट किया है, या इजीली कैश में या बैंक बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसे रिलीज किया है। तो यहाँ पे अभी कोई इन्वेस्टमेंट या फर्नीचर नहीं है, तो वो रिलीज हो चुकी है। क्या है, रिलीज। जब कोई भी एसेट रिलीज होती है तो वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। तो किसने लिया है, रिद्धि ने लिया है, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा सेकेंड एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे हम। कोई भी पार्टनर एसेट लेता है, मतलब एसेट के थ्रू पैसे लेता है या उस टाइप से पैसे पे करता है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, देन एंट्री वी रिकॉर्ड, सॉरी पोस्टिंग, फर्स्ट इफेक्ट वी रिकॉर्डेड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट ₹10,000 बाय एंड फर्नीचर 24,000। ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे लिखते तो भी चलेगा, बाय रिद्धीज कैपिटल अकाउंट 34,000। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? If any partner taken any asset, then first effect will be recorded realization account credit side. Okay, because that partner that taken that asset and pay to firm amounted rupees 34,000. Understood? Second effect we recorded partner's capital account debit side to realization account 34,000. Understood? टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹34,000। देखो फर्स्ट इफेक्ट किया था मैंने कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सिद्धिस कैपिटल 34,000, एंड सेकेंड इफेक्ट वी रिकॉर्डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर दिस कॉलम टू रियलाइजेशन 34,000। ओके, देन थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट ₹3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। उसका क्या था, लोन था, तो उसका लोन अकाउंट दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। पहले तो मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा है, उसका ये बैलेंस दिखेगा आपको बाय बैलेंस क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकॉज ऑलरेडी द बैलेंस बुक बैलेंस इज व्हाट 4,000, बट राइट नाउ शी एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 फुल सेटलमेंट, सो दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड फर्स्ट इफेक्ट Siddhi's loan account debit side to bank ₹3,000, and second effect we recorded
Second effect, we recorded realization account credit side by Siddhi's loan rupees 1000. By Siddhi's loan rupees 1000. Okay, understood everybody? Siddhi's loan rupees 1000. 3000 का इफेक्ट बाकी, अभी मैंने 1000 का इफेक्ट किया, 1000 रिलीज हो चुके थे, मतलब रियलाइजेशन जाएगा वो 1000, हमें एक्चुअली पे करने थे उसे 4000, कितने पे करने थे उसे 4000, बट अभी हम उसे 3000 रुपीज़ ही दे रहे, तो 1000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया, इज अवर गेन, दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सिद्धीज लोन अकाउंट 1000. अंडरस्टूड एवरीबडी? ये 1000 हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पे करने थे 4000, इंस्टेड ऑफ दैट वन वी आर गोइंग टू पे ओनली 3000. So that's why 1000 is our gain. So we recorded realization account credit side. And that 3000 we recorded that money goes out from our that money goes out. That's why we recorded bank account credit side by Siddhi's loan rupees 3000. Understood? देखो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. If any partner's loan paid in a full settlement, then we recorded first effect that partner's loan account debit side to bank, whatever amount we pay that can be recorded to bank. Second effect, bank account credit side, whatever amount we pay. If अगर गेन होता है तो उसका फर्स्ट इफेक्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट लोन अकाउंट में होगा, सिद्धि लोन अकाउंट में, एंड सेकेंड इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. अगर लॉस होता है तो आपको पता ही चला होगा अभी क्या लिखना है. अगर लॉस होता है तो लिखेंगे सिद्धीज लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा वो, और सेकेंड इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. अभी हमने क्या किए हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए हैं. व्हेन वी आर गोइंग टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसी साथ में हमें हमेशा याद रखना वहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें कंसिडर करना है यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स भी पे करने हैं. दैट्स वाई तो हमने ये एसेट क्या किए थे, रिलीज किए थे ना. तो अभी हमारे पास कितने 1,03,000 सॉरी कितने रुपीज़ के 1,03,000 के एसेट रिलीज होके कैश अमाउंट अवेलेबल है. सो दैट्स वाई हम अभी उसे रिलीज कर सकते हैं या उन क्रेडिटर्स की अमाउंट पे कर सकते हैं. दैट्स वाई उसका फर्स्ट इफेक्ट पहले होगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का इफेक्ट होगा. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन लिखो या सॉरी टू बैंक रुपीज़ 4000. अभी मैंने यहाँ पे क्या है सेपरेटली लिखा है किस टाइप से, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4000, मतलब टू रियलाइजेशन सॉरी टू बैंक रुपीज़ 4000. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट जाएगा उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड यहाँ पे कंबाइनली लिखा है बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. क्रेडिटर्स की अमाउंट भी लिखी है वहाँ पे, क्रेडिटर्स की अमाउंट भी पे की हमने 30,000. सो वहाँ पे कंबाइनली लिखा है जो भी एसेट है लाइबिलिटी है कंबाइनली मैंने वहाँ पे ट्रांसफर की. तो एसेट लाइबिलिटी और एज वेल एज एक्सपेंसेस पे करने के बाद फर्स्ट इफेक्ट लिखा मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक 34,000 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन 34,000. ओके क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड. जो भी इनकम आउटस्टैंडिंग था वो रिकवर नहीं हो चुका है, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे करेंगे, ओके रिकवरी नहीं हुआ है, जो भी है उसके बारे में लिखा नहीं है, तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे, तो उसे
वो रिसीव्ड ही नहीं हुआ तो उसकी रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं होगा, वो रिसीव्ड ही नहीं हो चुका है, दैट्स वाई उसकी रिकॉर्डिंग कहीं पे नहीं करेंगे। याद रहेगा सबको, यहाँ पे रिसीव्ड ही नहीं हुआ तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सो यहाँ पे कहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड एवरीबडी? ठीक है, देखो अभी रियलाइजेशन अकाउंट ये था फर्स्ट, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, all liabilities transferred to realization account at book value. Then after, all assets sold होने के मतलब रिलीज होने के बाद इतने अमाउंट मिली है तो वो लिखा हमने। बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी, सिद्धि ने एसेट ले लिए हैं तो उसका इफेक्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, बाय सिद्धिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। उसके बाद सिद्धि का जो भी लोन था वो लोन का इफेक्ट लिखा है। उसके बाद जो भी हमारे क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस है वो हमने पे कर दिए। देन आफ्टर लास्ट में आपको रेड लेटर्स में दिखेगा, दिस इज अवर रियलाइजेशन लॉस। वो क्या है हमारा रियलाइजेशन लॉस आ रहा है 36,000, क्योंकि दोनों साइड की टोटल करते हो तो डेबिट साइड हमें मिल रहा है 2,56,000। ओके, तो 2,56,000 में से हम लेस करते हैं उस डेबिट साइड की अमाउंट, तो वहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है, सॉरी क्रेडिट साइड की अमाउंट, तो हमें डिफरेंस मिल रहा है 36,000। एंड दैट 36,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर रेशो। क्या था रेशो उनका? 2:1। सो वी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट वन इन 2:1। तो रिद्धि के लिए 24,000 एंड सिद्धि के लिए 12,000। एंड दैट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में डिफरेंस है, दैट्स वाई डेबिट साइड। बाद में क्या करना है, अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते तो समय याद रखना हमने जनरल रिजर्व या बैलेंस लिखा है क्या। अभी आज तक हम क्या करते थे, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते तो वहाँ पे लिखते थे बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखते थे? बैलेंस कैरिड डाउन। या करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करते थे या लोन अकाउंट। पर अभी यहाँ पे क्या करना है, या फर्म बंद ही हो चुकी है तो जो भी है हमारे पास वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? बैंक अकाउंट को। कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? बैंक अकाउंट। देखो यहाँ पे रिद्धि का बैलेंस है 32,637 एंड सिद्धि का बैलेंस है 53,333। दैट कैन बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट जाएगा, ऑटोमेटिकली सिद्धीज लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि 1,000 हमने ट्रांसफ़र किए थे, दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया तो सिद्धीज अकाउंट ऑलरेडी टैली। अभी क्या बचा है, तो जो भी है कैपिटल हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। हमेशा याद रखो आज तक जितने भी प्रॉब्लम थे उस प्रॉब्लम में हम कंसिडर करते हैं अगर बैलेंस शीट टैली हो रहा है तो हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है। यहाँ पे ये याद रखना है, अगर आपका बैंक या कैश अकाउंट टैली हो जाता है, ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है, तो योर प्रॉब्लम होल प्रॉब्लम इज करेक्ट। योर होल प्रॉब्लम इज करेक्ट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देखो अभी यहाँ पे क्रेडिट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड सिद्धीज कैपिटल 32,637 एंड सिद्धीज कैपिटल 53,333। ये दोनों की टोटल होने के बाद टोटल है 1,23,000 एंड बोथ वन साइड इज इक्वल, दैट्स वाई अवर बैंक अकाउंट इज टैली एंड योर होल प्रॉब्लम इज करेक्ट। अंडरस्टूड? तो एक बार रिवाइज करती हूँ, जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले वाली स्टेप्स क्या है? स्टेप 1 नोट डाउन करो। स्टेप 1, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एट बुक वैल्यू विदाउट कैश और बैंक बैलेंस। सेकेंड, liabilities transfer to realization account credit side with at book value। ये सेकेंड स्टेप्स। थर्ड स्टेप्स मतलब एज पर एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप्स वो बैलेंस पोस्टिंग तो करने वाले हम, जैसे कि कैपिटल का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, जनरल रिजर्व का है, ये तो पोस्टिंग करेंगे। थर्ड स्टेप्स में वो सारे करना है, मतलब कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, बैंक का बैलेंस है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, लोन दिया है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, एंड रिजर्व फंड दिया है तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये होने के बाद 4 स्टेप्स है एज पर आवर एडजस्टमेंट।
एज पर आवर एडजस्टमेंट। 4 स्टेप से हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉलो करनी है। उसमें सबसे पहले वाली एडजस्टमेंट अगर वहाँ पे ऐसे वाला एसेट्स रिलीज पहले ही होती वो, बट हमेशा याद रखना 4th स्टेप्स क्या हमें करना है, एसेट को रिलीज करना है। रिलीज क्यों किस करना है, जो भी एडजस्टमेंट में अमाउंट ही उस अमाउंट से क्या करना है, रिलीज करना है। तो एडजस्टमेंट में जितनी भी अमाउंट है उससे क्या करते हैं, रिलीज कर लेते। तो उसका इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ये एडजस्टमेंट है, दैट्स वाई उसके 2 इफेक्ट होगा। इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट होगा कहाँ पे होगा, बैंक अकाउंट। असेट रिलीज हो चुकी है तो वो हमें कैश में पैसे मिलेंगे या बैंक में मिलेंगे, तो दैट बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर, 4 स्टेप। उसके बाद 5th स्टेप फॉलो करनी है एज पर एडजस्टमेंट। यहाँ पे हमने 5th स्टेप फॉलो की है। अगर वहाँ पे कोई भी पार्टनर क्या ले रहा है, एसेट ले रहा है, तो उसका इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 7, अगर वहाँ पे डिसोल्यूशन, अगर वहाँ पे कोई भी लोन रिलेटेड कंसेप्ट है, मतलब किसी भी पार्टनर का लोन है तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या देखना है, या अदरवाइज एज इट इज़ बुक वैल्यू को पे करना है अगर आपके पास बैलेंस बाकी है कैश का। तो 6 स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे सिद्धि लोन था तो लोन हमने पे किया है और उन्होंने सेटलमेंट किए थे, दैट्स वाई हमें गेन हुआ था, इसीलिए उसका इफेक्ट लिखा हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। जो गेन हुआ था वो कहाँ पे लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। 7 स्टेप्स नंबर 7 स्टेप्स नंबर 7 स्टेप्स नंबर 7 में हमेशा याद रखना हमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और जो भी लायबिलिटीज है वो पे करने हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और जो भी लायबिलिटी है वो पे करने। सो दैट्स वाई उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट होगा बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, ठीक है, ओके। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, योर होमवर्क इज यू हैव टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि। किसके बुक में एंट्री करनी है, रिद्धि एंड सिद्धि के, और ये सब एंट्री आपके नोटबुक में दिखनी चाहिए। ये है प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, कल की भी, मतलब कल जो प्रॉब्लम लिया था या कल के वीडियो में जो भी एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया था उसकी भी जर्नल एंट्री शायद आपने आपके नोटबुक में लिखी होगी। तो सेम एज इट इज़ इसकी भी जर्नल एंट्री आपके नोटबुक में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। देन